Priyanka Sharma, please on your video. Sir, my video is already on. It's displaying on the screen. I am not getting your video. Okay, Ritu, your video is not clear. Okay. Yeah, Mr. Mustafa, please show your video. Don't Okay, stop sir. your video, please. Yeah, you should be present. Okay, there. Okay. Ritu Dua, please don't stop your video. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Jeevan. Yes, sir. Yeah, Jeevan, your video is not showing here. You are not showing your video. Okay. Video is on, sir. Don't know why it's not coming. Let me. Mr. Now is it audible? Ashutosh Dhar Dubey. Vijay Man. Yes, sir. Good morning. Good morning. Where is your video? Sir. I want to one question from you all. Okay. How many persons are taking classes from their office? Sir, me. Yes, sir. Yes, sir. How many students are taking classes from the office? Sir, I am taking. Dheeraj Solanki. I am also. I'm also taking, sir. Myself, Rupesh also. So, Jeevan, And myself. Can you see my videos too now? Am I on? Actually, I think music is on. Music these days for the coursework classes. Okay. Again, I am saying you people. Okay, if you want to show your these days for the coursework classes, okay, then don't sign anywhere. If you are present in office, if you are present in your college, if you are present in your in semi government colleges, okay, so please don't show these days for the coursework classes. Otherwise this will be the biggest problem for you people. जिसका नाम बोलूंगा वही बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा कोई। दीपेंद्र यादव जी, yeah, unmute yourself. Is it okay right now? Yes, sir. I want to tell you people, okay, I have authority to mute all, okay? So please, if I'm saying please mute yourself, it means you have to mute yourself, okay? Okay, Dipender ji, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है, sir. Okay, so there are so many students belong to the Nepal and from India also, okay? So it is it is I'm not saying this is the teacher and student class, okay? This is a class of the class of the student centered also, okay? In student centered program, okay? So you people are free to discuss your personal problems regarding the research, okay? Together you people are free, okay? But you can discuss to each other, okay? But my first objective is to tell you peoples take the maximum cooperation from each other, okay? Because a single person cannot do a good research, okay? We need the support from the persons who belongs to your subjects, okay? So this platform will help you to make the friends from your subjects, to make the communication with your subject students, okay?
So take this platform, for the research initiation, okay, that will be very, very useful for you people. Okay, so take the benefit of this opportunity. We are combining with with platform of the Zoom. Okay, so but we can make so many friends for the conduction of smooth research. If suppose you are the person of the Nepal, okay, but if you are finding a person from the India who is also belongs to your subject, you can communicate with him, okay, and you and that person can work together. Okay, sir. Okay, so I'm going to start again the basic things of the research. Okay, as we discussed during the last class, what is the research? I told you the research. There are the two things: re and search. Okay, so means we are going to build some new, build some new, innovative things. Okay, so if you are talking about the research, if anybody want to ask question, you can ask me. Okay. I'm going to start. Okay. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'm going to start. Unmute yourself and ask any question if you have. No problem, sir. यदि आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. Otherwise, मैं start कर रहा हूँ फिर. Sir, I have one question. Yeah, please. First day I missed the class, and yesterday I took the class. Okay. And is there any attendance provision? Like yesterday also I was. If you are taking classes from your home and you are not attending any office, okay, then these attendance should be counted. Okay. Okay. So it's depend on you people. You want to show these attendance as the part of the coursework or not. Okay. No, sir. One thing I missed that. Today everybody was saying, sir, I am here. So is there any attendance system or not? Yeah, there is a definitely attendance system. We are putting your attendance. Oh, okay, sir. So if simply I am joining, we have a list of the students in hard copy, okay, and we are putting the attendance, okay. Okay. And the second question is that in our office we have got provision of half holiday. So I'm taking classes only up to 12:30 or 1, and I can take leave up to that. So is that okay, sir? That I don't need to take. Actually, if you are talking about the minimum 180 hours, okay. I told you earlier. I think you didn't attend my first class, as you said, okay. Yes, so actually, we need 180 hours. We need 180 hours. Okay, minimum 180 hours for the coursework classes. For the completion of the minimum working 180 hours, you have to take 30 to 40 days leave from your office. So you have to make such type arrangement in your office that will allow you to show your presence of minimum 30 to 40 days. Because if you are going to complete minimum 180 hours for the coursework, then you have to take leave from your office about 30 to 40 days. Because maximum can be more than 30 to 40, okay. But minimum 30 to 40 days are compulsory for maintaining the attendance of 180 hours. Is it clear? Okay, sir. So if I am joining just now and later on, what is your date of registration? 21st February. I appeared for last year, sir, 2021. 21, okay. 21 February was my entrance date. So accordingly, okay. And when did you deposit the fees of the first year? March. Yes, March. March. Yeah. How many students those are registered before 1 year? Okay, please send me message. Okay, we are making a WhatsApp group today, and you send your message. How many students are registered before 1 year? Okay. So that I will tell you them the different provisions about the course for completion. Okay, because those students registered recently before 1 month, 2 months, they have to complete their coursework
No, so but as per the norms, I told you minimum 180 hours. Okay, but those students registered before 1 year and now they are going to attend the coursework classes. Please drop your name and registration in the WhatsApp group. We are going to create it. Okay, I will take separate class and I will tell them how we can manage the things for them. Okay, so I in the first class I told I will take separate class those registered before 1 year. Okay, so don't worry about it. Okay, I will clear your all doubts. How can you show your coursework? Okay, so we will discuss later about it. Okay, mostly scholars are Sir, I registered. registered in November, 24th of November. Yeah, 24th November 2021. Yeah. Yeah, you can start your coursework from November. Okay, and you can end up to the May or April. Okay, so you can show your you can show your previous days from the coursework classes those are running right now. Okay. Okay. Sir, my registered date is 8/28. 8/28. Okay, we will discuss later about it. Okay, right now I'm not able to tell something about it. Okay, we will discuss later. Okay, we are creating a WhatsApp group. You send a message there. We will discuss how many students are registered before 1 year and more than 8 to 10 months. Okay, we will discuss later about it. Okay, otherwise my new scholars will be confused about it. Okay. ओके सो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका अगेन स्टार्ट कर रहे हैं कि रिसर्च क्या होता है। मैंने आपको बताया कि रिसर्च क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि री एंड सर्च दो वर्ड्स होते हैं, री एंड सर्च। री मींस न्यू, वंस अगेन, एंड सर्च मींस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। ओके, to find out something. Okay, so that is the research. Okay, so I told you about the difference between the theory and the research. Okay, theory means if you are talking about theories means that knowledge has been established. Okay, theory means the knowledge has been established. Okay, means theory is giving the explanation of the existing things. That is a theory. Okay, but if you are talking about the research is not giving the explanation. Research expanding the things. Okay, how can you expand the things? You can expand through the research. If you are going to explain, then you have to go for the theory. Okay, only. But if you want to expand the knowledge, then you will reinvestigate and you will refine something new. That will be the expansion of the theories. Okay, so research is expansion of the theories. Okay, if you are going to expand the knowledge, then you have to go for the research, and if you are going to explaining the knowledge, then you have to go for the theories. That is the basic thing. Okay, so I told you for the research purpose, because new scholars joined today, I am again starting from the beginning. Okay, so I told you research is a systematic and organized way to answer the questions. You have to give your answer of any question in organized and systematic way. As I told you, if you are talking about the search is a non-systematic. Okay, you are searching anything. Okay, there is no definite set of the procedures by which you will search. Okay, so search is the non-systematic way, but research is a systematic way. So what is the research? Research means research is a systematic and organized way to give the answer of any questions. My dear students, if you want to be a good research scholars, then you should think about the inquisitiveness. Okay, if you don't have inquisitiveness, then you can't be a good researcher. Okay, if you have some question in your mind, then you will try to give the answers. Okay, so as a good research scholar, you should keep about the problems which are existing in your areas, in your companies, in your organizations. And if you're thinking about the theories, and just think about what problem exists in the
exist in the previous theories, okay, then you can go for the research, okay. रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि आपको सपना आया कि मैं रिसर्च देख करूंगा, अरे मेरे को रिसर्च करना है बाबा, and you will go for the research, okay. No, ऐसा नहीं है. Research is a continuous process, okay. Research is a continuous process. You have to think about the previously published works. Suppose कीजिए कि मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आया, I want to study the student and teacher relationship, the study of student and teacher relationship during the online classes. I have this question. I have this question in mind. What is the relationship? How they are building the relationship? If any student taking the class to the online mode, teacher is delivering the lecture in online mode, how they will build the relationship, okay. So this is the question in my mind, okay. But this is the question. But if you are talking about the research, then you have to make the backgrounds, okay. I have to identify the things which are not fulfilled by the previous authors. Maybe this title, maybe this questions is answered by the previous authors. Then what is the value of my research? So as a good research scholar, you have to identify the research gaps also. So identification of the research problem is not sufficient. You have to also identify the research gaps. If I am not able to identify the gap between the Dipender Yadav and me, then how will I feel it, okay? I can't feel it, okay? So I have to identify the research problems, and I have to also identify the research gaps. Suppose I considered my title about the relationship between me and you during the online classes, but these title also studied by the previous authors. I have to think which type of things I have to take different from others. If my research question is already answered from there, from the previous authors, then what I will do new? If already the relations are established, then what is the value of my research? So my dear students, it's not important to identify the research problems, but it is also very, very important to identify the research gaps in the identified problems, in the formulated problems. तो जब भी आप रिसर्च के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है. हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किए हैं हमने, क्या वो जो है उसमें कोई डिफिशियंसी है, क्या ऐसा उसमें स्कोप है कि उसके बारे में काम किया जा सकता है, ऐसा कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी है, ऐसी कौन सी वीकनेस है, उसकी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको हमें आगे बढ़ा करके और इस जो गैप मैं सोच रहा हूँ, जो डेफिशिएंसी जो सोच रहा हूँ, उसको पूरा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी जो है स्कॉलर ने या किसी टीचर ने ये नहीं सोचा होगा कि जो नियर बाय एनवायरमेंट है आपके क्लास का, ऑनलाइन क्लास का, या फिर जो नेटवर्क जो आपका इंटरनेट है उसकी स्ट्रेंथ है, या फिर वीडियो की विजुअलिटी है, या प्रेजेंस ऑफ द स्कॉलर जो है थ्रू द वीडियो है, वो क्या उसको इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं करता. सो हो सकता है किसी ने एक दो फैक्टर जो है उसमें आइडेंटिफाई कर लिया, उनका रिसर्च नॉलेज ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया होगा. देन यू हैव टू थिंक अगेन अबाउट द न्यू प्रॉब्लम्स which influence the relationship of the teacher and the students during the online classes. If anybody consider some points, the points are solved, then you have to rethink about the factors which influence them. So मेरा कहने का मीनिंग ये है
सॉरी, कोई कॉल आ गया था, दैट्स व्हाई यू नो। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होता, ये भी होता है कि हमें रिसर्च गैप भी देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात हमारे साथ में ये होती है कि फ्रॉम वेयर यू विल गेट द रिसर्च गैप, हम कहां से मिलेगा हमें, क्या क्या सोर्सेज हैं रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने के। तो मैंने कल आपको यही बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ द रिसर्च। ओके, आई विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट इट। ओके, फर्स्ट पर्पस हमारा डिग्री गेन करना का ही है, लेकिन डिग्री के साथ साथ में हम और क्या कर सकते हैं, वी कैन सोल्व सम नो प्रॉब्लम्स, वी कैन गिव some valuable knowledge to the society, we can serve for the society. Okay, so I told you I will not discuss more about it. Okay, so मैंने आपको बताया था कि what are the steps of the research, रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि there are so many new scholars today, okay, join today, okay, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार वो वापस प्लेटफॉर्म बने। मैंने आपको ये बताया था कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्टेप्स आपको ये बताया था कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेशन ऑफ द identification of the research problems, formulation of the research questions. That is the first thing, but this first thing is not easy to design it. Okay, how will you design it? Okay, if you have some problems, then how will you formulate it? Okay, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला काम किसी रिसर्च स्कॉलर को करना चाहिए, यदि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसको लिटरेचर सर्वे करना चाहिए। You have some question from your experience, you have some questions from your environment, you have some questions from your knowledge। आपने कोई थ्योरी पढ़ी, वहां से कुछ क्वेश्चंस आपके पास में है, आपने जो है कोई न्यूज पढ़ी, वहां से कुछ क्वेश्चंस आपके पास में है, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पे कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं, आपका एक्सपीरियंस ये कहता है, आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, वहां से आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए, तो आपके पास में कुछ क्वेश्चंस आ जाएगा, यानी कि आपके पास में एक रिसर्च का एक प्रॉब्लम आपके पास में रहेगी। देन उस प्रॉब्लम को स्टडी कैसे करना है, उस प्रॉब्लम के लिए रिसर्च कैसे करना है, वो नॉलेज और इस प्रॉब्लम में हम किस तरह के फैक्टर्स लेके चलेंगे, किस तरह के जो ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, वो कहां से पता चलेगा हमें। तो मैंने आपको ये बोला कि देखो दो बातें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है टॉपिक, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है टॉपिक। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट योर ब्रॉड एरिया। few persons want to work in the human resource, few persons want to work in the zoology, इन जूलॉजी में भी वो जो है आपका बायोडाइवर्सिटी में काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं आपका जो है फाइनेंस में। तो आपका सब्जेक्ट ब्रॉड हो सकता है, लेकिन आपका जो टॉपिक होता है वो फोकस ओरिएंटेड होता है। So you have to identify your subject first, then you have to identify your research question, research problems. Okay, कि आप किस पे काम करना चाहते हैं। Your subject is computer science. Okay, but you want to select a particular subject in the computer. Okay, means cloud computing. Okay, तो cloud computing में अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप होता है। उस क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो आप कैसे करोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह का काम करना है वो आप कहां से पता करोगे। तो सबसे पहला काम मैं स्कॉलर्स को ये बोलता हूं कि भैया आज से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड थिंक अबाउट योर प्रीवियस स्टडीज रिगार्डिंग टू योर सिलेक्टेड इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपका कहां से आता है, वो आपका थ्योरीज से आ सकता है, आपकी किसके डिस्कशन से आ सकता है। एज आई टोल्ड यू लास्ट क्लास ओके, कि आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कहां से आपका मिलेगा, आपके एक्सपीरियंस से मिलेगा, आप जो पहले की थ्योरीज पढ़ रहे हैं उससे मिलेगा, या फिर जो है आपके किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं आप, ठीक है, इंटरव्यू कर रहे हैं, वहां से मिल सकता है आपको, या फिर पहले की जो रिसर्च हुई है उनको पढ़ने से मिल सकता है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले की स्टडीज करनी पड़ेंगी, जिसको बोलते हैं लिटरेचर सर्वे। जस्ट यू पुट योर
कंप्यूटिंग डालना है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिगार्डिंग आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अब आप क्लाउड कंप्यूटिंग में एक पर्टिकुलर थीम को लेकर चलना चाहते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यार देयर आर द सो मेनी पेपर्स। सर्वे मैंने क्या बोला, दो बातें होती हैं, लिटरेचर सर्वे एंड लिटरेचर रिव्यू। सर्वे का मीनिंग है यू हैव टू सी ओनली, यू हैव टू सी व्हाट इज द मटेरियल इज एग्जिस्टिंग इज देयर। तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो काम करना चाहता हूं वो ये पेपर तो उससे रिलेटेड है, बाकी नहीं है। The remaining, we got the 100 papers, but we found only 30 to 40 papers are relevant our work. Human resource के पेपर हैं वो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के पेपर हैं, लेकिन जो हम करना चाहते हैं, what do you want? The paper is related with that or not, okay? तो आपने देखा कि वो पेपर्स जो हैं वो आपके काम के नहीं है। Remaining 30 are the worst for you. They are relevant with the cloud computing but not related to your research question, your research problems, okay? Then only there are the 30 to 40 papers you have to go for the review. You have to review for that, okay? Don't go for the literature survey. Survey आपने कर लिया है, you found the so many papers, now you have to go for the review. Literature survey will help you to select the papers which are totally relevant with you, but literature review will give you about the ideas what knowledge has been established by the previous authors. तो ये डिफरेंस होता है लिटरेचर सर्वे में और लिटरेचर रिव्यू में। लिटरेचर रिव्यू will make you able to make your own opinion about the previous works, and literature review will help you to identify the research gaps. And my dear scholars, you and me are not able to conduct any research without identifying the research gaps. And from where you will get it, okay? You will get it from the previous established knowledge, means previous published research works. जो कि आपके रिसर्च वर्क्स आपके क्या हो सकते हैं कि जो आपके थीसिस हो सकती है, कोई डिसर्टेशन हो सकता है, कोई रिव्यू आर्टिकल्स हो सकता है, और किसी जर्नल्स में जो पब्लिश्ड वर्क्स हैं वो हो सकते हैं। तो हमें उनको देखना पड़ेगा। तो आई विल टेल यू हाउ विल यू गेट इट, ओके? मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द मटेरियल्स विच आर रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क। इतना बड़ा जो है इंटरनेट रिसोर्स जो है वो बन गया है कि हम लोग जो है इजिली अपने घर बैठे बैठे अपने को ओल्ड मटेरियल मिल सकता है। अभी पता क्या हो रहा है, लोगों को जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, तो लोगों को मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड टू शो देयर प्रेजेंस, ओके? चैट बॉक्स में 26 मैसेज हैं, और ये सिर्फ इसलिए है कि सर मैं कौन हूं और मेरा अटेंडेंस लगा देना। सर माई सेल्फ दिस वन, आई एम टेकिंग द क्लासेज, ओके? और वो लोग हैं जो कि जिनका वीडियो ऑफ है और जो है सिर्फ जो है वीडियो ज्वाइन करके कहीं चले गए हैं और ये मैसेज ड्रॉप कर गए हैं कि सर हम क्लास में हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप टीचर क्लास लेगा कि उनका वो वीडियो देखेगा। आप यू विल बी सरप्राइज, देयर आर द 26 मैसेज, और सिर्फ जो है उसमें यही लिखा हुआ है सर माई सेल्फ दिस वन एंड माई एनरोलमेंट नंबर इज दिस एंड आई एम टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास। अब आगे टीचर यदि समझदार है तो वो समझ जाएगा कि इसकी अटेंडेंस लगानी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो है रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आप जो है इस तरह की लें जो कि इजिली अंडरस्टेबल हो आपकी और प्रिसाइज फॉर्म में हो, और जो है उसके लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिसर्च प्रॉब्लम्स आप ले रहे हैं उसके लिए आपका जो मटेरियल है वो अवेलेबल है कि नहीं है, मींस द बैकग्राउंड सपोर्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट इट, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कि आपको कैसे कैसे जो है कि आपको किस तरह से जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को जो है वो जो है चूज करनी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल्स, ओके, कि किस तरह से हैं। फिर भी कल का स्लाइड एक बार मैं दोबारा दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को ताकि आप समझ सकें।
ये आपको नजर आ रहा है सब लोगों को? कल मैंने बताया था आपको। Yes, sir. Yes, sir. मैं अगेन जो नए जो आज ज्वाइन करना चाह रहा हूं उनको बता रहा हूँ, देखो यदि आप अपनी रिसर्च को 100% में डिवाइड करो ना डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, किसी भी यदि आप साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो किसी भी रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये वाले स्टेप्स होते हैं। देखिए पहला होता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम्स। ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. ओके, सो आई टोल्ड यू अर्लियर। Yes, ओके, sir. तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, पहला काम यही करना पड़ता है। सेकेंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बट एज ए टीचर आई एम सेइंग यू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सबसे ये लिखने को बाद में लिखा जाता है, बट दिस इज द फर्स्ट वन। Without reviewing the literature, you are not able to identify the research problems. Okay, because identification of research problem is not a is not a issue. Issue क्या है? Issue है आपका to identify the research gaps. और research gaps आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको reviewing the literature. तो लिखने में टेक्निकली ये बाद में आता है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट सबसे पहले बनता है किसी सब्जेक्ट में, और उसी इंटरेस्ट को आप जो है रिव्यू के थ्रू देखते हो। That's why we are putting first one, identification and defining the research problems. Okay, but if you want to really know about your selected subject and selected your selected problem, then you have to go for the review of literature, because identification of the research gap will be identified from the review of literature. So that is the first. Okay, it's टेक्निकली हम बात करते हैं तो बाकी आपका यदि आप रिटर्न में बात करते हैं तो रिटर्न में आपका आता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम फर्स्ट आता है, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द सेकंड। ओके, देन फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव। समटाइम्स वी आर इफ यू आर द पर्सन ऑफ द लाइफ साइंस, ओके, इफ यू आर पर्सन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, ओके, देन देयर इज नो नीड टू मेक अप द हाइपोथेसिस। ओके, you will design only objectives. Okay, so formulation of hypothesis and objectives. Okay, formulation of hypothesis and objective will be the third. Okay, then after selecting the research objective and the hypothesis, you will go for the designing of the methodology, by which methods, by which way you will get these objective. Okay, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि I want to go on the Himalayan. Okay, मुझे हिमालयन जाना है, तो मुझे हिमालयन जाकर के वहां पे यदि मेरे को वहां के एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना है तो आई हैव टू सिलेक्ट सम मेथड्स एंड डिजाइंस कि मुझे क्या करना है वहां पे। वहां जाके मुझे टेम्परेचर देखना है तो किस मेथड से देखूंगा मैं, वहां जाकर के मुझे यदि जो है आपका कोल्डनेस जो है उसके बारे में बात करनी है तो किस तरह से बात करूंगा मैं, वहां जाके मुझे वाटर के बारे में देखना तो किस तरह देखूंगा, वहां जाकर के मुझे जो आपकी जो प्लांट्स हैं वहां के बारे में पता करना तो कैसे पता करूंगा। कहने का मीनिंग है कि किस मेथड से कौन से वे से आप अपने ऑब्जेक्टिव को गेन करोगे। सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि मुझे नेपाल जाना है, तो मैं नेपाल गया, लेकिन कैसे जाऊंगा नेपाल में? बाय ट्रेन जाऊंगा, बाय वे जाऊंगा, बाय व्हीकल जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कब स्टार्ट करूंगा? So you have to make a plan. Okay, you have to make a plan by which methods you will achieve your objective or hypothesis. Okay, जब आप जो है वहां जो है उस मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो आपको डेटा कलेक्शन मिलेगा। यू विल गेट सो मेनी डेटा। सपोज करो कि मुझे नेपाल जाना है, तो जब नेपाल जाऊंगा तो मैं व्हीकल से जाऊंगा तो मुझे क्या डेटा मिलेगा कि कितनी टाइम मुझे लगेगा, कितना मेरा ऑयल जो है वो कंज्यूम हो गया और कितना जो है मेरा खर्चा हो गया। You will get so many data or not. Okay, तो जब आप रिसर्च मेथड्स को अप्लाई करोगे तो डेटा मिलेगा, और जब आपको डेटा मिल जाएगा तो देन यू विल मेक ए कंक्लूजन। ओके, आप उसको एनालिसिस करके और कंक्लूजन कर सकते हैं कि क्या कंक्लूजन रहा, कितना मेरा खर्चा है नेपाल जाने का, कितना मेरा जो है मेरे को कितना टाइम लगा, और मेरी इस जर्नी में मैंने क्या क्या अचीव किया वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो कहने का मीनिंग है कि दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द रिसर्च। स्पेशली वो उन लोगों के लिए है जो कि साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा जो कि ह्यूमैनिटीज के हैं। ह्यूमैनिटीज में बेसिकली आपके जो है पॉलिटिकल साइंस वाले आते हैं, या फिर आपके जो हिस्ट्री वाले आते हैं, या फिर इंग्लिश लिटरेचर वाले जो लैंग्वेज वाले हैं, उनके लिए ये मेथोडोलॉजी अप्लाई नहीं होती है। दे हैव सम डिफरेंट मेथड्स। ओके, आई विल टेल देम। ओके, इंग्लिश और आपके जो हिंदी वाले हैं और बाकी जो हिस्ट्री वाले हैं या पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, उनके लिए ये जो कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं ये जरूरी नहीं होते, वहां पे कुछ डिफरेंट होता है जो कि मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एनी रिसर्च। ओके, यदि आप करना चाहते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसी रिसर्च नहीं कर सकते।
दे कैन गो हेड, ओके, वो भी कर सकते हैं। जैसे कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ इंग्लिश में, सो वो भी साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि ये दीज कंपोनेंट्स मेकिंग द 100%, ओके, 100% प्योर रिसर्च बनाते हैं यदि आपने अच्छी तरह से किया है। लेकिन इन कंपोनेंट्स में किसका वेटेज ज्यादा है ये बात करें तो देखिए, मैंने सबसे पहले बताया था कि 100% हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ना, यदि आप अपनी रिसर्च को इनिशियल स्टेज पे पूरा करना चाहते हो तो पहला जो ये है आपका डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स, ये अच्छे से कर लो आप। इट मीन्स यू कंप्लीटेड योर हाफ रिसर्च। यदि आपने प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन कर लिया, रिसर्च गैप को अच्छी तरह से पहचान लिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छी तरह से कर लिया, ऑब्जेक्टिव अच्छे बना लिए, हाइपोथेसिस अच्छी बना ली, तो इसका मीनिंग ये है कि आपका 50% काम ये हो गया। और आपकी जो सिनॉप्सिस होती है, सिनॉप्सिस यानी कि प्रपोजल ऑफ द रिसर्च वर्क, प्रपोज रिसर्च वर्क का जो प्लान होता है वो आपने अच्छे से कर लिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव कंप्लीटेड 50% रिसर्च। और जब आपने आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का कर लिया, देन यू विल बी एबल टू डिफाइन द वे और मेथड्स कि कौन से मेथड्स हैं वो आप अचीव करेंगे, तो वो 25% होता है। Then 15% interpretation. If you got the results, if you got the data, then you will interpret them कि आपका डेटा क्या बोलता है। ये 15% होता है। एंड 10% होता है आपका कंक्लूजन, और उसको किसी के साथ में दूसरे प्रीवियस ऑथर्स के साथ में डिस्कस करना। तो ये आपका एक परसेंटेज का जो है रेशियो है कि कैसे आपका जो रिसर्च है उसको आप यदि इस स्टेप में करके चलेंगे तो यू हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी परसेंटेज, ओके। इसलिए बोलते हैं ए गुड इम्पैक्ट रिसर्च आउटकम डिपेंड ऑन हाउ वेल द रिसर्च प्रॉब्लम इज डिफाइंड, ओके। यदि आप अच्छी रिसर्च चाहते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छा करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके। If you have any question you want to ask me, okay. How many objectives can we put, sir? Yeah, actually, if you are talking about your research, okay, then objective depend on your title, okay. I am not able to tell about the number of the objective, okay. But teacher and my experience, okay, what I have, okay. I want to tell you there will be 4 to 5 objectives. Hello. Yeah. Sir, can you again brief formulation of hypothesis? Madam, actually, I will tell you separately about the hypothesis, okay? Don't ask me anything, okay? Today I am giving only just introduction. I will tell each and every component separately. सर एक चीज बताइए, मान लीजिए हम कुछ भी बनाते हैं तो आप एक चीज बताइए, जैसे मानो हम कुछ भी रिसर्च करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो पूरा हम थीसिस में कैसे बना पाएंगे? क्योंकि मानो हमने कुछ बनाया वो तो 3-4 पेज या 10 पेज ही बना पाएंगे, लेकिन वो पूरी एक रिपोर्ट बनाना टिपिकल प्रोसेस नहीं हो जाता है? Yeah, please repeat your question again, okay? I didn't hear it, okay? Please repeat it, okay? What you want to ask? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने कुछ भी रिसर्च करा, कुछ भी बनाया, कुछ न्यू इन्वेंट करा, तो क्या होता है कि वो हम 5 पेज या 10 पेज में डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन जो थीसिस होती है, जो कुछ भी होता है, वो 100, 200 या 500 इतने पेजेस की होती है। तो उस चीज को हम कैसे पूरी अपनी रिपोर्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे जो हम बनाएंगे? My dear scholar, okay, it is very hard question from your side, okay. How can you complete your journey of the 3 years within 2 and 3 pages, okay? You are not achieving only one objective in the whole 3 years. You will select a title and you will design minimum 4 to 5 research questions, okay. What is your research question? What is the background of your research question? What is the way or method to solve the research question? And what did you get? Okay, and what did you get? And established by the previous authors, okay. And then you will give the support and citation में आप उसको दोगे, तो how can you complete in 2 and 3 page, okay? If you're doing your research work with the following components, okay, as I told you, firstly you have to identify the research gaps. Means you will study so many research papers, you have to give there. आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि कौन कौन से रिसर्च पेपर से आपने अपना रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया है।
देन यू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स, ओके, रिसर्च क्वेश्चन। देन आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च क्वेश्चंस जो है उनके बारे में बताना पड़ेगा। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर बाय विच यू गेट द आंसर्स। सर जैसे मैं- मैंने ना क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसर्च करी थी, मैंने ठीक है। पेपर भी पब्लिश करवाए थे, तो मेरा वो पेपर मैंने 10 to 20 You- पेजेस में you- कवर कर दिया था। My dear students, you achieved only one objective through the one paper, okay? आपने एक ही ऑब्जेक्टिव किया। You will choose at least 4 to 5 objective for a research. फाइन। You have to make the arrangement for the completion of the your research work in the whole 3 years. आप एक ऑब्जेक्टिव पूरा करके रिसर्च नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि मिनिमम 3 इयर्स में आप अपने कितनी ऑब्जेक्टिव गेन कर सकते हैं। सर एक ही टॉपिक पे 3-4 करने हैं या 3-4 टॉपिक पे ये 3-4 होने? My dear, you have to select a title and you have to design the research questions. Okay, fine. On title, okay. जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेज, ओके। तो इसमें आपको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव आपको बनाने पड़ेंगे। मैं एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन लेस होती है। फिर मैंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स की प्रेजेंस नेगेटिव होती है, ठीक है। मैंने बताया कि इंटरनेट की एफिशिएंसी जो है वो ऑनलाइन क्लासेज में पुअर होने से इन्फ्लुएंस होती है। तो यू हैव टू मेक सो मेनी ऑब्जेक्टिव, देन यू हैव टू गिव आंसर। ओके, फाइन सर, थैंक यू। ओके, या और कौन पूछ रहा था मेरे से? Sir, one query is here, sir. In descriptive research, sir, we need to prepare the hypothesis, sir. Actually, madam, you are very intelligent. You are going very fastly than me. I didn't reach there, okay. I don't want to confuse my remaining students. Okay, sir. Okay, sir. I'm not talking about the research design. Why are you talking about it, okay? जब हम करेंगे तो बताऊंगा ना मैं आपको। यदि आपको तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में नहीं पता है, देन मैं कंफ्यूज क्यों करूं उनको? जो हम बात करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स पे, वहां यदि आपको बात करनी है तो कीजिए आप। Sir, I have one question related to research problem. Yeah, please. Sir, the same question that like we have got load forecasting. So we have to make 4 objectives related to short-term load forecasting, abrupt load forecasting, and long-term load forecasting, or we can do 2 topics objectives related to load forecasting and 2 related to transmission section. Actually, definitely, I am not person of your subject, okay. But what I'm saying you, you can't complete your research in only one objective, okay. You have to select a topic, and in the topic you have to identify the problems. What are the problems existing right now, okay, and what are the research questions which are not answered by the previous authors. Then depend on you. If there are the 10 questions, then you can choose any 5, okay. If there is only 4 questions, you can choose only 4, okay. But you should think about it, okay. How will you engage in the research work for whole 3 years, okay. यदि आपने एक ही ऑब्जेक्टिव चूज किया, ठीक है, तो आप फिर अपने आप को 3 साल तक एंगेज कैसे रखेंगे? तो रिसर्च, और उसको यदि किसी भी एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी एस्पेक्ट को एक अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में एक अच्छी राय देने के लिए कम से कम हमें 4 to 5 ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। Because without knowing the all facts, how can you reach on the conclusions? By one research question, how can you make the generalization of the results? हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वेरिएशंस कहाँ आ रहे हैं। तो डिपेंड ऑन यू, इट्स you and your supervisor matter, okay. How many research questions and objective you will choose, okay. But as a teacher, and as per my experience, I'm saying you minimum 4 to 5 objects should be selected for the completion of a good research. सर एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी, कि अगर हम रेज हैंड करते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आप प्लीज क्या करें, क्योंकि 3 दिन में मैंने 4 बार रेज करा
लेकिन क्वेश्चन बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि आप रेंज करते हैं लेकिन मैं फ्लो में हूं ना, तो दिक्कत ही है मेरे साथ। अभी मैंने बोला ना, फिर आपको आपके हैंड रेज को देखे तो बोला मैंने एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अभी मौका दिया ना, मैंने खुद बोला। बीच में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि मेरे पास में जो है रेगुलरली जो है, यदि मैं इस तरह से करूंगा तो फिर ये क्लास चलेगा नहीं, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स हैं। यदि बीच में इंटरप्शन करेंगे दिक्कत हो जाता है। मैंने खुद बोला ना कि भैया आप कोई क्वेश्चन है पूछ लो, आप बोला कि नहीं बोला बताओ। सर 4-5 दिन ही पूछेंगे, उसके बाद सब चुप हो जाएंगे सर। अब ये एक फजो होता है, नहीं नहीं पूछता। उनका तो मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ऑनलाइन में खड़े जाओ तुम पूछो, या नाम लेके नहीं बोल सकता, ये तो नहीं बोल सकता ना यार मैं। आप समझने की कोशिश करो कि ये मेरे सामने क्लास होती तो मैं आपका ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यदि आप ऑनलाइन में बोलूंगा देवेंद्र जी आप पूछो क्वेश्चन, टीकाराम जी आप क्वेश्चन पूछो, ओके ब्राल साहब प्लीज आस्क द क्वेश्चन, ओके, तो मैं ये नहीं कर सकता ना। ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने ये बोला था कि यू कैन रेज योर हैंड देन आई विल गिव यू चांस, ओके। अभी मैं पूरा आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज कुछ नया डिस्कस नहीं किया है, आई डिडंट डिस्कस न्यू थिंग, ओके। मैंने आज पहले का ही बैकग्राउंड बताया है पूरा। कल हम बात करेंगे फ्रॉम वेयर यू विल गेट द रिसर्च गैप, ओके। कल हम बात करेंगे फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मटेरियल फॉर द लिटरेचर सर्वे एंड द रिव्यू, ओके। आपने सबको पता कि कहां से मिलेगा, लेकिन मैं डिफरेंट बताऊंगा, आई श्योर यू अबाउट इट, ओके। डेफिनेट। यस प्लीज बोलिए। सर मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है यूनिवर्सिटी से, कोई मेल नहीं आता। मेरी फ्रेंड मुझे फिर सेंड करती है मेल। आपने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था, और मैंने जो है पर्सनली डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट को भी शेयर कर दिया है जी। आज आपने शायद कल मेरे को फोन बोला था, शायद कल किया था फोन। 3 दिन हो गए हैं सर। हाँ, तो वो हो जाएगा सर, आप चिंता ना करें, ठीक है। अभी तो हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी डायरेक्टली आपको ही पास आएगी, आपके फ्रेंड के पास नहीं आएगी। ओके थैंक यू सर। आप अपना वो नंबर और या ईमेल कुछ शेयर कर सकते हैं, कि मुझे नहीं पता आपका नंबर या ईमेल या कांटेक्ट कैसे करेंगे, आपका नाम भी नहीं पता। अभी थोड़ी देर में देखो, आपने क्लास कब अटेंड किया मुझे नहीं पता है, ठीक है। जैसे तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। यदि कोई ये बोलता है कि मैंने अपना नाम नहीं बताया, तो इससे बड़ी गलत आरोप मेरे पे नहीं हो सकते। दीपेंद्र जी बताओ, मैंने नाम नहीं बताया क्या? जी बताया था सर, बताया था, और 3 बार बताया था मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ। अब आपने नहीं सुना तो मुझे भी आपका नाम नहीं पता। मेरा नाम तो मनीष गुप्ता है, और मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था, वो मेरी गलती है, सॉरी। तो मैंने बोला था इंट्रोडक्शन, और मैंने बोला था सबको पता है मेरा नाम डॉक्टर सुमेर सिंह है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर हियर, यहाँ पे काम करता हूँ। मेरा बेसिकली डिपार्टमेंट जो है वो लाइफ साइंस एंड अप्लाइड साइंस है। रिसर्च के कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता हूँ। मेरे से जो प्रॉब्लम सोल्व होंगी वो डेफिनेटली करूंगा। और जो है, जहां तक बात है आपस में कम्युनिकेशन करने की, हमारे जो है आईटी टीम के द्वारा अभी एक व्हाट्सएप जो है ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है। उसका लिंक जो है कल 100% श्योर आपके साथ शेयर कर लेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग आपस में जुड़ के रहेंगे, और वहां पे जो भी मेजर डिस्कशन रहेगा या फिर जो भी शेयरिंग रहेगी वो भी करेंगे। आप भी अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए फ्री रहेंगे। मैं ये श्योर करता हूं कि आप एक दूसरे को जरूर पहचान पाओगे, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम जो है ये 15 डेज का है, और 15 डेज में मैं जानता हूं कि हम जो है आपको काफी कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि जिससे आप अपनी रिसर्च को स्मूथली कंडक्ट कर सकें। और ये भी मैं श्योर करता हूं कि आपको कि आप लोग भी अपना जो है सब्जेक्ट वाइज जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ये रिसर्च ग्रुप एक क्वालिटी देता है, और वही क्वालिटी ये देता है कि ए सिंगल स्कॉलर कैन पब्लिश मोर देन 4 to 5 पेपर्स। एज पर द नॉर्म्स ऑफ द PhD रूल्स, you have to publish 2 research articles, but if you are able to make the combination of the different friends of your same subject, then you will be able to publish 4 to 5 papers. Suppose कीजिए मैं पेपर पब्लिश करने जा रहा हूँ, दीपेंद्र जी मेरे सब्जेक्ट के हैं, ब्राल साहब मेरे सब्जेक्ट के हैं, टीकाराम खरेल मेरे सब्जेक्ट के हैं, मनीष गुप्ता जी मेरे सब्जेक्ट के हैं, निधि मेरे सब्जेक्ट की हैं, तो मैं तो अपना रिसर्च वर्क करूंगा ना, आई विल डू इट, ओके। दीपेंद्र साहब भी अपना रिसर्च वर्क करेंगे, वो अपना रिसर्च वर्क करेंगे, वो भी पेपर पब्लिश 2 करेंगे, मैं पेपर पब्लिश करूंगा, मैं भी 2 करूंगा। यदि मैं दीपेंद्र जी का नाम देता हूँ और दीपेंद्र जी मेरा देते हैं, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? सो मोस्टली जी तो मैंने देखा यहाँ मैनेजमेंट के कंप्यूटर का तो मेरे को कोई अब तक भेजा नहीं, बाकी देखते कोई आएगा तो है। बिल्कुल है कंप्यूटर के भी हैं। मैं बताऊं, निधि पुलिस, निधि अलवादी,
कंप्यूटर का मैं भी Sir, is there any candidate of education, sir? ये मेरा काम नहीं है बताने का, व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा मैं ना। और ये नहीं पूछो मैं किस किस को बताऊंगा कि कौन किस सब्जेक्ट का है। धीरे धीरे हम अभी तो 2 दिन हुए हमें, ओनली 2 डेज। मैं भी कंप्यूटर ग्रुप का हूँ। हाँ ये मुझे पता है कौन कौन है, मुझे पता है, लेकिन बताना नहीं चाह रहा। वो खुद भी तो सर्च करें कुछ। जब ये अपने साथी को नहीं ढूंढ सकते तो फिर रिसर्च को कैसे ढूंढेंगे वो लोग। नहीं, मानसिंह सर को मैंने ढूंढ लिया है, उनका ईमेल आईडी। चलिए अभी आज का क्लास फिनिश करता हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो नया क्लास सर है। हाँ मनीष सर। अभी नेक्स्ट मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मिल जाएगा, चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जो हमारा जूम क्लास चल रहा है उसके चैट बॉक्स में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा ना। अभी हुए हैं 11/8, 11:15 पे डॉक्टर प्रभात जी हैं, वो क्लास लेंगे आप लोगों का। ठीक है सर। और सैटरडे को डीयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी। ओके सर, मैं एक बार मैं पूरा फिनिश कर दूं, आपकी परमिशन हो तो। सैटरडे को डॉक्टर अमित गुप्ता जी हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं। ही विल टेक क्लासेस फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, लेकिन क्लास वो ऐसा लेंगे, कॉमन लेंगे, सबका कॉमन लेंगे तो आप बाकी लोग भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ही इज पर्सन ऑफ द डीयू, ओके। और वो मैनेजमेंट के जो है प्रोफेसर हैं, तो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं कंप्यूटर के, बाकी जो है वो भी अटेंड करें, बिकॉज वी आर सेइंग देम कि आप जो है कॉमन क्लास लीजिए जिससे बाकी सभी स्कॉलर्स को बेनिफिट मिले। We are arranging the guest lectures for you people from the different universities, okay? एक्सक्यूज मी सर। Yeah. वो मेरा भी प्रॉब्लम है सर, यूनिवर्सिटी का वो लिंक नहीं है, सिटी फाउंडेशन कर रहा हूँ, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। एक्चुअली रीजन क्या है सर कि आपका जो मेल एड्रेस है ना, हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेल एड्रेस आपने सिटी फाउंडेशन का दे रखा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। मोस्टली scholars those belongs to the Nepal, okay, they have their mail ID with name of the city foundation, okay, because they enter the mail ID of the city foundation as at the time of the application form, okay. So अभी हम आप लोगों से जो है एक हमारा मेल आईडी है research@singhania university.ac.in। ये हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है। आप जब भी कम्युनिकेशन करें यहाँ पे कीजिएगा। आपका और आपका जो मेल आईडी है, अपडेट यदि आपको करवाना है तो आप अपना मेल आईडी उसमें और नंबर आपका डाल दीजिएगा, हम अपडेट करवा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। research@singhania university.ac.in। रिसर्च सिंघानिया यूनिवर्सिटी सर, या research@singhania university.ac.in। ठीक है। अभी मैं इसको क्लास को एंड कर रहा हूँ। कल हम जो क्लास लेंगे, कल जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा हाउ कैन यू सर्च द प्रीवियस स्टडीज, हाउ कैन वी गेट द रिसर्च मटेरियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च गैप्स, ये रहेगा। तो कल यदि किसी पर्सन के पास में लैपटॉप है, अपना लैपटॉप सामने जरूर रखिएगा, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू नो फ्रॉम हियर, ओके। I will tell you, you have to search in your laptop, okay? तो आपके साथ साथ में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपका जो है लेक्चर भी पूरा हो जाएगा। तो जितने भी लोगों के पास में है वो प्लीज अपना लैपटॉप साथ में जरूर रखिएगा। ओके, सो अभी आपकी परमिशन हो तो मैं क्लास का एंड कर दूं। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी क्लास होने वाला है। अभी जो है 11:20 पे डॉक्टर प्रभात विल बी देयर, ओके। कल 10 बजे क्लास 10 बजे से ही होगा, लेकिन अभी सेकंड लेक्चर होगा 11:20 पे। ओके सर। सर लिंक आज ही शेयर करोगे? अभी कर देंगे थोड़ी देर में। सर हम लोग लीव ले सकते हैं, फिर बाद में जुड़ेंगे? हाँ, अभी तो मैंने बोला ना 11:20 का टाइम बोला आपको, तो 11:25 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।